میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو آپ دکھا دیں گے کنسنٹ کے بغیر کر سکتے ہیں, زبردستی کر سکتے ہیں آپ, یہ سننا سے یا حدیث سے یا قرآن سے یہ کہیں سے بھی دکھا ثابت, دیں. سر ایک سیکنڈ میں بتاؤں, آپ یہ ثابت کر دیں کہ سورج نہیں ہے, وہ چاند ہے. سورج دیکھیں نہیں ہے, چاند ہے. بات یہ ہوتا ہے کہ کنسنٹ ثابت کرنا ہے. اگر نہیں لکھا ہوا تو بائی ڈیفالٹ نہیں ہے. کنسنٹ کو ثابت کرنا آپ کا کام ہے, ورنہ کنسنٹ نہیں لکھا اور تمام احادیث میں. اچھا ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں آپ کو, جب محمد نے اپنی سلیو ماریا کپتیا کے ساتھ سیکس کیا تو ماریا کپتیا سے پہلے کنسنٹ لیا تھا؟ لیا ہونا ہے لیکن لکھا نہیں ہوا. لیا تھا وہ. لکھا اس صرف کیا تھا. اس کا ایسا کیجئے کہ اس کی ایک حدیث دکھا دیں کہ محمد نے کنسنٹ لیا تھا ماریا میں نے کہا ہے لیا ہونا ہے لیکن جری اللہ ایک منٹ میں تھوڑا بتاتا ہوں, آپ نے پورا نہیں سنا, یہ کہہ رہے کہ لیا ہے لیکن لکھا نہیں ہے. اچھا لیا لیکن لکھا نہیں ہے, یہ محمد کے پاس تھا. اچھا واپس لائیں. اچھا لیا تھا, اگر لیا تھا کنسنٹ تو ماریا کپتیا نے معبور کے ساتھ سیکس کیوں کیا تھا؟ اس کا پریفرنس دے دیجیے گا. میں نے نہیں دینا, ریفرنس دیا ہوگا کہیں نہ کہیں, میں نہیں دے رہا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی مرضی. ہاں تو پھر معبور کے ساتھ سیکس کیوں کیا تھا یہ بتائیے. بھائی ریفرنس دے دیں مجھے. کیوں آپ نے ریفرنس دیا کنسنٹ کا؟ آپ نے ریفرنس دیا کنسنٹ کا؟ میں نے تو ایک لایا ہوں جو آپ نے بولا کہ نہیں یہ نہیں صحیح, آپ بھی ایک لائن. نہیں کہاں پہ ہے یہاں پہ کنسنٹ نہیں ہے نا سر. دیکھیں سیکس کرنا سلیو کے ساتھ یہ بدکاری ہے کہ نہیں ہے, پہلے بتا دیں. نہیں یہ نہیں ہے, بدکاری نہیں ہے نا سلیو کے ساتھ سیکس کرنا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے بدکاری سے روکے. سر ذرا عربی میں جائیے, اس کی تھوڑی سی اوپر جائیے, عربی میں جائیے. اوکے, یہاں پہ آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے, ذرا غور سے کیجئے گا. البغا. سر ذرا کلک کریں, نہیں نیچے آئیں, اسکرول کریں تھوڑا سا. البغا ہے نہیں, حیوانات سے اوپر ہے نیچے. البغا, یہ فرسٹ لائن فرسٹ ورڈ, کلک دیٹ. یہ اوپر والا, یہ نہیں سے اوپر والا, نہیں حیات سے اوپر نا, یہ والا البغا, یہ. ہاں جی سر, اگر سلیو کے ساتھ سیکس کرنا بدکاری نہیں ہے تو یہاں پہ بغا کیوں لکھا ہوا؟ فورس کر کے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھا ہوا فورس کا لکھا ہوا ہے, فورس کا لکھا ہوا ہے. and do not compel your maids, compel your کدھر maids to کمپیل کے لیے لفظ نکالیں, کمپیل کے لیے لفظ نکالیں. تکری ہوا یہی لکھا ہوگا پیچھے جائیں. یہ والا جی, یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجبور کرو. اچھا مجبور کرو. اچھا مجبور کر کے اگر سلیو کے ساتھ سیکس کیا جائے, مجبور کرو, تو وہ بدکاری ہے. کہاں پہ لکھا ہے بدکاری ہے؟ یہیں پہ آگے نیچے والی لائن پہ البغا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجبور کر کے کرو تو بدکاری ہے, یہ ریپ نہیں ہے جی, تب بدکاری ہے. اگر آپ مجبور کر کے, تب یہ گناہ ہے, مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا. گناہ ہے, کہاں لکھا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز منع کر دی ہے تو وہ گناہ ہوگی. اور اگر کوئی اگر اس کی سزا کیا ہے, ایسے گناہ کی سزا کیا ہے؟ ایسے گناہ کی سزا آپ کو دی جائے گی, میرا خیال ہے 100 کوڑے, وہی جو بدکاری کی 100 کوڑے. آپ کا خیال ہے سر یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ خیال نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے شروع میں آ جائیں, سورہ نور کے شروع میں آ جائے. شروع میں آ جائے. سورہ نور کے آیت نمبر دیں, آیت نمبر دیں, آیت نمبر دیں, ذرا آیت نمبر دیں, وہاں جاتے ہیں, آیت نمبر دیں. سورہ نور آیا بھائی نیا لے کے آئے ہیں کہ سیو کے ساتھ اگر کوئی سیکس کرتا ہے بدکاری کی سزا, بدکاری کی سزا. بدکاری کہیں ہے نا بھائی, تو اس کو بدکاری ثابت کر دے پہلے. چلیں سورہ 24 آیا 2, سیم سورہ نور آیا 2 پہ آ جائیں. The fornicated woman and the fornicating man flog each of them with 100 strips. اچھا جو فورنیکیٹ کرے نا, یہاں پہ مجبور کر کے فورنیکیٹ کرے, کہاں لکھا ہوا؟ تو فورنیکیشن جب تک آپ مجبور نہیں کریں. ریپس کی سزا کیا ہے؟ ریپس کی سزا کیا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں ریپس کی سزا کیا ہے؟ مجبور کر کے سیکس کرنا ریپ ہوتا ہے, فورنیکیشن نہیں ہوتا. فورنیکیشن ہوتا ہے سیکس آؤٹ آف میرج. ریپس کی بھی ہے, ریپس کی بھی ہے. اوکے سر ذرا سنیے گا, ریپس کی سزا پتھر ہیں. اگر شادی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ حدیث سے ملتی ہے, یہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. اچھا 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 اچھا, وہ قرآن یہ وہ آیت ہے جو بکری کھا گئی تھی. فیئر انف. تو اڈلٹری اور ریپ ایک ہی ہے ان کے نزدیک.
साहिल साहब एक बराबर है एडल्ट्री और रेप इनके मुताबिक. यस It's the same यस, thing. अडल्ट्री और रेप एक ही चीज है इनके नजदीक. चले अब मेरी बात सुने. वो एक ही चीज है. अच्छा एक सेकंड, आप कहे नहीं मेरा बच्चा अब रिलैक्स हो जा, मेरा प्यारा बच्चा रिलैक्स हो जा. साहिल साहब आप 33 की 50 खोलिए जरा प्लीज. जी अभी खोल देते हैं. 33. ले जी अब फोर्निकेशन की बात करेंगे, क्योंकि फोर्निकेशन की आयत में भी मजबूर का लफ्ज नहीं है. अब देखते हैं कि इनके नबी को 80 कोड़े पढ़ने चाहिए कि नहीं. इनके नबी को 80 कोड़े पढ़ने चाहिए थे. ये आ गई. मैं पढ़ूं क्या? नबी को 80 कोड़े क्यों आपके पढ़े? 33 पढ़ना तो आता नहीं. 33 की 50 जी सर इसी आयत 33 सूरह अहज़ाब है जी. आप क्यों पढ़ेंगे? मैट्रिक फेल हैं आप तो, आप चुप करके बैठे. ले जी ये कहते हैं ओ नबी तुम्हारे लिए जायज कर दी गई हैं तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने मेहर दे दी है, और उनको भी जो तुम्हारी बांदियां हैं. लो जी पकड़ो. अब जायज कर दिया गया है बांदियों को भी सेक्स करने के लिए, और उनको भी जो तुम्हारी बीवी हैं जिनको मेहर दे दिया है. तो मेरे बेटे आप यहां पे वही जो तुमने आयत दी कि एडल्ट्रस मैन और एडल्ट्रस वुमेन को कोड़े मारे जाएं, तुम्हारे नबी को कोड़े मारने चाहिए, क्योंकि वहां पे भी फोर्स का लफ्ज नहीं है, यहाँ पे भी फोर्स का लफ्ज नहीं है. देयर यू गो. जाओ अपने नबी को कोड़े कब मरवा रहे हो ये बताओ. आप आए पहले पढ़े से फोर्स का लफ्ज वहां पे है, आपने अपने पढ़े नहीं है? क्यों नहीं है वहां पे फोर्स का लफ्ज? आप आ जाओ उधर, वापस आ जाओ बेटा. पढ़ो ना, कहाँ पे फोर्स का लफ्ज? ये आप पढ़े इसको. मैट्रिक फेल पड़ेगा अब आयत. चलो पढ़े. वकातिबुहुम केरा मकातिबुहुम आ गया. 33 की बजाय मकातिबु. फकातिबुहुम 33 की 50 पढ़ रहे हो डंगर. अच्छा सॉरी मैं वापस गया था, वहां पे फोर्स का दिखा रहा था. भाई मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ. आप हाँ मैं देख रहा हूँ. तुम एक तो मैट्रिक फेल भी नहीं और तुम झूठ बोल रहे हो. तुमने हदीसें भी पढ़ी हुई है, तुमने तफसीरें भी पढ़ी हुई हैं. तुम बहुत बड़े झूठे हो गया. उससे आगे नहीं पढ़ा. तुम आए हो पाकिस्तान से, मुझे पाकिस्तानियों का पता होता है कि वो कितने बेगैरत हैं. साहिल भाई को नहीं पता होता. मैं पहले समझा था कि शायद तुम एक अच्छे शख्स हो, लेकिन नहीं, साबित कर दिया था तुमने पहले 5 मिनट में ही. अब तो गेम फर्क होगी. 33 की 50 पढ़े यार. कुछ भी पढ़ा. 33 की 50 पढ़ता हूँ. O Prophet, we have made lawful for you all your wives whom you have given their dowries, and those whom you own out of the captives. And those whom you own. Perfect. बेहतरीन हो गया. जिनको तुम ओन करते हो हमने लॉफुल कर दी है. अब यहाँ पे फोर्स अनफोर्स्ड कुछ भी ऐसी चीज लिखी हुई है नहीं. ओके थैंक यू सो वेरी मच. अब नबी को भी 80 कोड़े मारो, क्योंकि तुमने कहा था कि एडल्ट्रस वुमेन और एडल्ट्रस औरतों को 80 कोड़े मारने. 100 है काम ना करें. 100 कोड़े जी 100 कोड़े. 80 है बेसिकली, 100 तो नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं. 100 मार लिया. आयत 2 पढ़ ले. आयत 2 में जी 80 है जी. 80 मारने. चलो पढ़ लेते हैं. आए वापस 100 मारने. 100 मार लेंगे यार. 100 मार लेंगे. डजंट मैटर. 100 मारेंगे. मोहम्मद को भी 100 कोड़े मारो यार. यहाँ पे नहीं किया, लेकिन कुरान का आप एक ही सामान है, दूसरा नहीं मान रहे. मोहम्मद को 100 कोड़े क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि उन्होंने ज़िना बिल जबर नहीं किया. नहीं, कहाँ लिखा हुआ ज़िना बिल जबर? ओके जी आयत नंबर 2 में चले जाएं जी. सूरह नूर की आयत नंबर 2 में चले जाएं. ज़िना बिल जबर दिखा दे मुझे. नहीं मेरी बात. ज़िना, चलो ज़िना किया है ना इन्होंने. थैंक यू सो वेरी मच. दोस्तों याद रखो, हमारे भाई ने कहा है कि मोहम्मद ने ज़िना किया है, इसलिए 100 कोड़े नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ज़िना बिल जबर नहीं किया. तो याद रखिएगा ज़िना बिल जबर नहीं है ये. आप मेरे हाँ जी लफ्ज़ डाल रहे हैं. अब सूरह नूर की आयत नंबर 2 में ज़िना करने की बात हुई है, ज़िना बिल जबर की बात नहीं हुई. लिहाजा मोहम्मद को 100 कोड़े मारो. भाई मेरी बात सुने. हम शुरू हुए थे. भाई वापस भाई मोहम्मद को 100 कोड़े मारेंगे या नहीं? अब आपने बोलने देना मुझे. क्या नहीं, मैं बोलता हूँ आप मुझे टोक देते हैं, फिर क्या करना है? सर आपने खुद ही क्या ज़िना बिल जबर नहीं किया? मोहम्मद ने मान लिया ज़िना किए. नहीं, उन्होंने ज़िना किए नहीं. ये तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अलाउड कर दिया हुआ है. सूरह नूर की सूरह अहज़ाब की आयत ये अलाउड है. ये नहीं. अच्छा साहिल भाई जी, साहिल भाई, लेकिन मोहम्मद के लिए अलाउड है ज़िना करना. जबरदस्ती करेंगे फिर नहीं. जबरदस्ती हाँ साहिल भाई, मोहम्मद के लिए अलाउड है ज़िना करना. साहिल भाई याद रखिए, ज़िना अलाउड है भाई. हमारे अपनी स्लेव्स, मेरी बात सुने, अपनी स्लेव वुमेन आप तमाम के साथ कर सकते हैं, और स्लेव वुमेन भी कर सकते हैं. नहीं जी, तमाम स्लेव वुमेन के साथ हर मुसलमान के लिए अलाउड है ज़िना करना. साहिल भाई
जी जी अलाउड हालांकि है। ये इन्होंने खुद कहा था कि कोई भी औरत कंसेंट नहीं देगी इक्का दुक्का को छोड़ के, हाँ साहिल भाई इन्होंने जिना खुद कहा अलाउड था है। ये अगर वो तो। नहीं देगी तो हाँ नहीं, उसके बाद साहिल नहीं भाई, फोर्स कर सकते हो। साहिल भाई जिना हाँ अलाउड है। ओके दोबारा साहिल साहब अब इनकी आयत पे चले जाएं, सूरह नूर की जिना आयत नहीं नंबर 2। allowed। जिना करने वाले को ये 100 आपके कोड़े सामने है। मारे, यहाँ पे बिल जबर नहीं लिखा हुआ साहिल साहब। लेकिन वो जिना है ही नहीं, वो अलाउड है, वो जिना है, है जिना ऐसी चीज है, मेरी बात जिना। सुनो, जिना अभी ऐसी हेलो, अभी आपने कहा जिना अलाउड है हर मुसलमान के लिए, मेरी स्लेव वुमन जिना के नहीं साथ। कहा, स्लेव वुमेन के साथ वो क्या उसका नाम है, जिस्मानी ताल्लुक करना कहा है, मैं जिना करना नहीं कहा है, तो क्योंकि जिस्मानी जिना ताल्लुक को वो जिना चीज ही होती कहते है। हैं, शादी के बगैर जिस्मानी ताल्लुक को क्या कहते हैं? जिना। शादी के बगैर और अपनी बीवी अपनी गुलाम को छोड़ के उसके अलावा जिससे भी करेंगे वो जिना है, लेकिन क्या इनके अंदर मतलब, रह करेंगे वो जिना नहीं ये कहलाते, क्या ये बात कुरान हुई, ने क्लियर कर दिया हुआ है। ये क्या जी बात हुई? जिना की डेफिनेशन तो यही है ना कि अपनी स्लेव और अपनी बीवी को छोड़ के जिसे भी आप बाहर से करेंगे वो जिना होता है, जब ये उनसे करेंगे डेफिनेशन तो किसने दी जिना है? है ये ही नहीं। डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन जरा दिखा दें कुरान जिना ने की। कुरान ने दे कहा दे कि ये नहीं अलाउड है हमारे लिए। भाई, हेलो भाई, सूरह ये 33 डेफिनेशन दे वही दे। जो भी आपने बोले, जो भी आपने दी है, जो अभी आपने आयत दी है सूरह हजार की, हाँ सूरह 50, हाँ उसने हाँ। अल्लाह ताला ने अलाउड कर दी है ये चीज रसूलुल्लाह के लिए। अल्लाह ताला ने अलाउ कर दी है चीज ना, जिना जी अलाउड ये कर देखें, दिया है। जिना जिना अलाउड कर नहीं दी। है, ये जिना नहीं है, ये ओके, जिना नहीं है। अब वापस ऐसे आते तो हैं जी, बोले वापस बीवी के साथ भी वापस जिना है। इसी आयत पे आते हैं। अच्छा, जो वो औरतें जो नबी को अपना आप हिबा कर दें, उनके साथ भी मोहम्मद सेक्स कर सकता है, तो वो जिना है कि शादी है? वो जिना नहीं है, वो अच्छा, जिस्मानी ताल्लुक है अपनी स्लेव के साथ, लेकिन वो नहीं जिना नहीं स्लेव है। स्लेव के की छोड़ बात के, नहीं हो रही है। अरे मोमिन औरतों की बात हो रही है आगे। हिबा कर दे मोमिन औरतें जो अपना आप, वो हाँ वो जो कहाँ पे मोमिन औरतें अपना आप हिबा कर दे, गिफ्ट कर दे मोहम्मद को, वो and daughter of your parent uncle and daughter of your parent daughter marital aunts have migrated with you, believing woman of herself to the prophet without dowry, if the prophet wishes to bring them into his marriage, these rules being exclusive for you। अगर वो ओके। शादी करना चाहें, शादी का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, ये जी ट्रांसलेशन जी में गलत लिखा हुआ है। रुको अगर मैं आप आपको दिखा देता साहिल हूँ। साहब नीचे जाए, डॉक्टर इसरार अहमद की उर्दू खोलें, ये पाकिस्तान से है, नीचे जाएं, बल्कि मैं जाता हूँ साहिल साहब, मैं अपनी स्क्रीन लाता हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद हाँ लेके आता हूँ। ये डॉक्टर इसरार अहमद इसको सही तरीके से लिखते हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं ना, सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चले मैं लिखी गई हुई डॉक्टर है। पढ़ लेते हैं ये डॉक्टर मैं इसरार सर, से। ये देखे, ये स्टेज पे आ गया, ये देखे। नहीं, और वो चलो मोमिन मैं औरत भी जो हिबा कर दे अपना आप नबी के लिए, और अगर नबी इसको निकाह में लाना चाहे, यानी कि उसके साथ सेक्स करना चाहे, निकाह लिखा है, ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? यस्तन के निकाह हा, लिखा हुआ है, क्या मतलब निकाह। निकाह लिखा हुआ है? अब डॉक्टर हाँ, निकाह इसरार किसे कहते हैं? ये निकाह अपने निकाह निकाह किसे कहते शादी हैं? को कहते हैं, निकाह वो जो किसने कहा है? कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है उसे किसने कहा कहते है? हैं। किसने कहा? किसने कौन सा क्या कॉन्ट्रैक्ट है ये? चाहते, कौन सा ये कॉन्ट्रैक्ट शादी है का ये? कॉन्ट्रैक्ट है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट किसने अपने कहा है? निकाह में लाना चाहें। किसने कहा है? निकाह क्या है, आप बता दें निकाह क्या है। मुआ हमने सेक्स, तो निकाह यही सेक्स, सुना है, सेक्स, सेक्स को सेक्स, निकाह कहते यस। हैं। चले मैं अरबी में अरबी पढ़ लेते हैं, कोई नहीं मसला। ओके, अरबी पढ़ ले, अरबी आप पढ़ ले। डॉक्टर इसरार को खुद हैं, डॉक्टर इसरार भी निकाह हाँ कह रहे हैं। हाँ, मैं, अब उन्होंने इसलिए शादी नहीं लिखा, उन्होंने इसलिए निकाह लिखा है, शादी नहीं लिखा, निकाह लिखा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेक्स है, ये देखिए, ये स्तन के हा है, निकाह है ही नहीं, ये देखिए। वह इन हब्बत नफ्सहा नबी इन अरदा नबी आई यस्तन के हा खालसतन लका। वो औरतें जो अपना आप हिबा कर दें, नबी उनके साथ यस्तन के हा कर सकता है, निकाह नहीं, सेक्स कर सकता है, चलिए यस्तन के हा कर सकता है। सुने चलिए जरा मेरी आप बात, इसकी ट्रांसलेशन क्योंकि बता रहे हैं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, क्योंकि खालिसतन लका मिन दुनिल ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के लिए है, मोमिनों के लिए नहीं है। वरना कोई भी औरत कहे कि यार मैंने मोमिन आपके साथ शादी करनी है, तो भाई ये तो हर मोमिन के लिए जायज है। ये वाली चीज सिर्फ मोहम्मद के लिए जायज है। विदाउट अगर डाउरी। मोहम्मद के लिए सिर्फ जायज है, अगर सिर्फ मोहम्मद के लिए जायज है, तो भाई फिर ये इसमें इसका मतलब है कि कोई औरत जी किसी मर्द को निकाह का पैगाम नहीं दे सकती ना जी जी इस्लाम में। इसका जवाब भी एक सेकंड जी भाई, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, विदाउट डाउरी वो उसके विदाउट महर डाउरी के क्या लिखा है? बगैर। हेलो हेलो, हाँ, क्या लिखा है? जी जी क्या लिखा है? जी जी पढ़े। क्या लिखा है? विदाउट महर, अरबी 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 सामने है, चले पढ़ लेते हैं अरबी में। पढ़े। बिलीविंग ये उमरातुल मोमिनीन दिखाएं जरा, कहाँ है डाउरी? नहीं लिखा। अच्छा, पढ़ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए भाई, रुक जाए। ट्रांसलेशन में मैं तो बेवकूफ बनाया गया था। मैं पढ़ रहा हूँ, एक मिनट पढ़े पढ़े, मैं लोगों अरबी। से बात कर रहा हूँ, लोगों अच्छा से ठीक बात कर रहा हूँ, 5,000 लोग फिर सुन ठीक रहे हैं ठीक मेरे है भाई, ठीक पाकिस्तानी है भाई को।
डाउरी नहीं लिखा, साहिल भाई नहीं लिखा। ओए नहीं होए लिखा होए हुआ होए है। होए, मालिक ओए होए 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 होए, डाउरी की अच्छा, बात लग गई। मीनवाइल जब तक ये भाई ढूंढते हैं, भाई का जो सबसे पहला जो मुद्दा था वहीं से फॉल्ट है कि एडम साहब आप बताइए कि एक्सेप्शन पे कानून बनाए जाते हैं, इजाजत दी जाती है, या जो जनरल चीजें हैं उस पे कानून बनाए जाते हैं या इजाजत दी जाती है? किस पे बनाए जाते हैं कानून? सर जर्नल पे बनाए जाते हैं, दैट इज स्टुपिडिटी जनरल टू पे ना? बिगिन विद, और स्टुपिडिटी थी इन्होंने दी थी। मगर मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ साहिल भाई, कि आपने इतने प्यार से चले। मैं अभी लाइव नहीं आना था, मैं थोड़ी देर बाद आना था, एक तो काम थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसके मुंह से सुना ना पाकिस्तान, ओ मैं कहा नहीं ये झूठ बोल रहा, ये हो ही नहीं सकता कि इसे ना पता हो। और साहिल साहब पहले पहले 1 मिनट के अंदर अंदर इसका झूठ साबित हुआ था ना। बिल्कुल देखिए साबित हुआ। साहिल भाई, पाकिस्तानी को ना पता हो, आपको पता है इंडिया में जब मैं लोगों के पास बात करता था तो आप कहते थे यार ये नहीं पता, मैं कहता था कैसे नहीं पता, ये बकवास है नहीं पता। तो सर पाकिस्तानी जो स्कूल कॉलेज गया हो उसको ये बात ना पता हो। सर हमारे कॉलेजों में लड़कों का मजाक ही है, गजवा हिंद करना है, और इंडिया से ये जो है अपना एक्ट्रेस है इनको लेके आ रहे हैं, सिर्फ एक्ट्रेसों का नाम बदलता है वक्त के साथ साथ, उनका हाँ, सिर्फ नाम बदलता है बस, लेकिन बाकी सारा वही रहता है। आज भी कॉलेजों में ये वाली बात चलती है पाकिस्तान में, गजवा हिंद करना है और इनको मलकल यमीन बनाना है, सर डिंगी डिंगी करना है। तो ये तो मजाक के तौर पे चलता है, ये पाकिस्तानी कैसे आगे कह सकता है ये बात। मैं तो उसी वक्त मुझे पता, मुझे जैसे इसने कहा पाकिस्तानी, मैं कहा ये तो आना पड़ेगा, क्योंकि साहिल जो है वो इंडिया के हिसाब से समझ रहा है इसको। जी जी, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये ट्रांसलेशन वाली थैंक यू गलत सो लिखी है। मच। मान गया तो मैं। मेरी जान, ये तो यस्तन क्या है, ये तो सेकस है। ये स्तन का मुझे मुझे अरबी नहीं आती, ये मसला ना सर में। हाँ अगर हजरत है तो मैं मेरा आपको पौला ट्रांसलेशन बच्चा, कर अब कुछ देता। भी नहीं आएगा, अब कुछ भी नहीं आएगा। डॉक्टर बस इसरार अहमद की अपनी चले, मैं डॉक्टर वो है सरार का पढ़ लेता हूँ। वीडियोस हैं, हाँ, हाँ वो मैं सुनता हूँ बयान कुरान उनका। बयान कुरान, उसमें उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन और तफसीर दी हुई है कि जो मुसलमान मोमिन औरत अपना आप हिबा करना चाहे वो कर सकती है, मोहम्मद के लिए जायज है, सिर्फ मोहम्मद के लिए जायज है। हिबा कहते हैं गिफ्ट को, उसमें शादी नहीं होती, इसलिए क्योंकि जिससे मोहम्मद ने शादी कर ली वो औरत दोबारा किसी से शादी नहीं कर सकती मरते दम तक। जी हिबा जी। की हुई औरत किसी से भी जाके शादी बाद में कर सकती है, क्योंकि उसने अपना आप हिबा किया था फॉर द टाइम बीइंग, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्स। सो अब मुझे बताइए जिना है कि नहीं? और डॉक्टर सरार के ट्रांसलेशन मानेंगे आप? सर उन्होंने निकाह लिखा हुआ है ना, निकाह का मतलब सेक्स होता है। निकाह का मतलब का निकाह तो हम शादी ओके जब करते हैं आइए, ये कहते हैं आइए निकाह मैं हो आपको रहा है दिखाता, हमारा, मैं आपको निकाह हो बताता रहा हूँ, है। मैं आपको आज आपको कुछ थोड़ी सी तालीम देते हैं, क्योंकि ये चीज पाकिस्तान में चलें नहीं बता बताई दें। जाती, ये मुझे पता है। चलें बता दें। चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 230, ये सर चैप्टर पढ़िएगा अरबी में मेरे साथ, 12 पढ़िएगा स्क्रीन के ऊपर, 230 ये स्क्रीन के ऊपर अरबी में पढ़िएगा जरा। आयत फ़इन 230 तल्लक़हा, पढ़िएगा आयत 230। सर, ये मेरे सामने स्क्रीन पे है, जरा पढ़िएगा। चलें आप पढ़ें, आप पढ़ें। आप पढ़ेंगे। इन तल कहा फला तल्लक़हा ताहिलु तलक कहा तहिल्लु ताहिल लहू ताहिल्लु लहू मिम बादु हत्ता तनकीहा तनकीहा जौजन गैर गैरु गैरहू, इन। बस खत्म, बस खत्म। जी पढ़े। क्या मतलब है इस चीज का? अपने चलें ट्रांसलेशन में जरा पढ़ें, अब ये जरा मेरे अपनी सामने ट्रांसलेशन में पढ़ें, आपको पता लगे। डॉक्टर सरावर पढ़ते हैं। फिर डॉक्टर अगर साहब की वो ट्रांसलेशन में पढ़ें। फिर अगर वो हम्म तीसरी मर्तबा ब्रैकेट में इसे तलाक दे दें तो औरत हम्म इसके बाद इसके लिए जायज नहीं है हम्म जब तक कि वो औरत हम्म किसी और शोहर से निकाह ना करे। ओके बस परफेक्ट, अगर स्टॉप करिए, जी यहीं पे हमने पढ़ा था इतना ही। किसी और शोहर से निकाह होता है, या किसी और शोहर से, अगर आपको निकाह की मैरिज ट्रांसलेशन करें, शोहर से मैरिज होती है या शोहर से सेक्स होता है? शोहर से शादी होती है। नहीं, शादी मर्द से होती है गधे, जब शादी होगी तो शोहर बन जाएगा, क्या हाँ बच्ची ठीक है वाली ठीक बात है कर ठीक रहे है ठीक ठीक है ठीक, मुझे नहीं समझ लगी ना आपके साथ। हो? चलो ओके, शादी करोगे तो शोहर बनेगा ना। जी 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 जी, शोहर से शादी नहीं, सॉरी। ओके, हलाला क्या होता है कि किसी दूसरे मर्द से शादी करनी है, उसको शोहर बनाना है, फिर उसके साथ जी सेक्स करना है, उसके बाद जी तलाक लोगे तो पहले मर्द पे जा सकते हो, राइट?
विदाउट सेक्स नॉट जी पॉसिबल. जी एग्जैक्टली नहीं है. ये आयत इसी वजह से वो सेक्स जरूरी है, सिर्फ शादी जरूरी नहीं है. ये आयत कह रही है मिम्बादू हत्ता तन के हा, जब तक वो सेक्स ना कर ले, जौजन गायरा, किसी दूसरे हस्बैंड के साथ, किसी दूसरे शोहर के साथ. इसी वजह से हलाला के अंदर सेक्स जरूरी है, इस आयत की वजह से. इस आयत की वजह से हलाला के लिए दूसरे शोहर के साथ सेक्स जायज है. हत्ता तिन के हा जौजन गायरुहु, जब तक वो सेक्स न कर ले किसी और शोहर से. शादी, अगर शादी लिखा होता तो अगर इसका मतलब शादी होता तो तन के हा उम्रा गायरा होना चाहिए. उम्रा तो औरत कहते हैं, सॉरी, रजल गायरा. हत्ता अगर इसका मतलब शादी होता, हत्ता तिन के हा रजलु गायरुहु, किसी और मर्द से शादी ना कर ले. यहां पे हत्ता तिन के हा जौजन गायरुहु, जब तक वो सेक्स ना कर ले किसी और शोहर से, जौज के साथ, शोहर के साथ. तो जहां पे यस्तन के हा लिखा है, तिन के हा लिखा है, तन के हा लिखा है, इट मीन्स सेक्स. फिर उन्होंने निकाह क्यों ट्रांसलेट किया? सर निकाह, क्योंकि निकाह आपको बेवकूफ बनाने के लिए. अच्छा, बेवकूफ बेवकूफ ये कैसे बनेंगे आप? नॉर्मल जो डॉक्टर सरार है वो तो सुने बगैर बोल देते हैं, वो नहीं सर सोचते किसी को कुछ बेवकूफ करता कैसे है. बनाएंगे आपको? मैं खोलता हूँ वो लिसानुल अरब, उसमें इसकी ट्रांसलेशन चेक कर लेते हैं. मैं ये ले मेरा भाई, ये मेरे भाई लोग बोलते हैं खोल रहा हूँ. अरबिक लेक्सिकॉन, ये ले मेरा भाई, लिसानुल ये अरब ले खोल ये ले रहा हूँ. ये ले. हाँ हाँ वही सारी, ये ले. निकाह, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. निकाह तो उर्दू का लफ्ज है ना, वो जो अरे अरबी का निकाह लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है ट्रांसलेट कर लो. डंगर, उसको ट्रांसलेट नहीं करते आप लोग. ये ले पहली तेरे निकाह, जो अरबी में लफ्ज लिखा हुआ है ना उसको गेट दी ट्रांसलेट कर, जो अरबी में FUCK लिखा हुआ है. आउट देयर मैन, अरबी डिक्शनरी है. निकाह, दे प्रोबेबली गोइंग टू FUCK हर इन मोरली. ठीक है, आगे चलते हैं और देखें. ये देखें आगे, अगला लाता हूं मैं सर आपके सामने निकाह लेके आता हूँ ना ढेर सारे. भाई मेरी डोंट बात वरी सुने, जो जो आपने सर. अब ये अरबी में पढ़ा वो डिक्शनरियां पढ़े ना, जो खोल लें निकाह सर, में ये ट्रांसलेट डिक्शनरियां किया खोल लें उसको डाल लें. सर. सर फटाफट बोल, डिक्शनरियां कौन खोल सी है? लें. अरबिक ये डिक्शनरी. निकाह FUCK ले. अरबिक ये देखिए सर लिखा हुआ है ना. अब आपके निकाह की डिक्शनरी. गेम खराब हो गई है ना. रुके, अरबी का जो लफ्ज है उसको करें ना ट्रांसलेट, जो ऊपर उन्होंने निकाह में ट्रांसलेट किया उसे चेक करें. मैं अभी ऊपर वाले को ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ. कौन से इसको ऊपर वाले को निकालिए. ट्रांसलेट करना है आपने? निकाह है तन की हा जिसे उन्होंने ट्रांसलेट किया. पहले निकाह पे आप नहीं तैयार है, आप रुके, तन की हा का मतलब चेक कर लेते हैं ना. तन के हा का मतलब चेक कर लेते हैं. ओके जी, मैं तन के हा का मतलब लेके आता हूँ मेरे प्यारे भाई के लिए. हाय स्लैश 30. एक सेकंड, मुझे वहीं से कॉपी करता हूँ मेरे प्यारे भाई के लिए, पप्पू भाई के लिए, मेरा पप्पू भाई. ये ले सर, ये आपके पास तन के आ गया, जेर जबर पेश के साथ आ गया. ले सर, क्या लिखा हुआ है? और डू यू वांट टू टेल मी दैट यू विजिटेड टू गो स्क्रू हरसेल्फ? उसके साथ जाके एफिंग की तुमने. ये देखें अगला, जंप ऑन द काउच, स्क्रू किया उसको. अगला ले, शुड बी मैरिड. डू यू वांट मी टू विजिट गो स्क्रू हरसेल्फ? गोइन नीचे जाए ना, तीसरा भी तो पढ़े ना. हाँ वो मैरिज वो बाद में है, लेटर क्वार्टर डिनार वो उन्होंने बाद में किया. वो तनख्वाह नहीं है, वो उसको डिफरेंट किया उन्होंने. उसके वर्ड नहीं, अब वो छोड़ रहे चेंज हैं. किया. मैरी भी नीचे भी अरे किया, यार छोड़ रहे हैं. ओके यस चलो ठीक है. अभी ये तो देखो ना कि गो स्क्रू हरसेल्फ है ना. अच्छा अब ये हो गई नीचे बात. वाले भी तो पढ़े ना, नीचे वाले तो पढ़े. ओके डन, नीचे वाला भी पढ़ लिया. डन, मैरिज भी हो सकता है जी, मतलब उसका. चलो ठीक है. अब मुझे बताए कि आप अपनी बीवी के साथ, अपने मर्द के साथ शादी करते हैं या खामंद के साथ? शादी करते हैं मर्द के साथ. बेहतरीन. अगर खामंद हो तो उसके साथ क्या करेंगे? शादी करेंगे या सेक्स करेंगे? खावंद के साथ सेक्स करेंगे जी. आयत में तनकेहा का मतलब क्या आया हुआ है? सेक्स के तौर पे आया हुआ है या शादी बन सकता है? शादी बन सकते हैं, शादी करेंगे तो दूसरा कुछ होगा ना. अब आप अबे डायरेक्ट तो जाके गधे कर के भी नहीं बच्चे, देते. हस्बैंड के साथ शादी कैसे करोगे दोबारा? जी हस्बैंड के साथ शादी कैसे करोगे? then if okay then I do